now we can talk some about our diploma subjects, because many of us Yes, going to yes. take diploma courses, and Sunny is here in diploma, and I think Manish has also some ideas, so they can put some light about some courses, how much Yes. difficult and what are we are going to learn and in that. I think Harsh is trying to say. Yeah, Yeah, Harsh. actually, I was saying something. I remembered there was means when I gave the interview, I was given a situation where I need to come up with the solution, optimized solution, not the normal solution, optimized solution I had to come up with, and in such a way that company should profit with that. So Yes, it's like the everyone case wants study something that I was solution. given, and I needed to find the optimized solution. So that is also one part which any interviewer can ask you, even an HR can also. Yeah, I want to know about from Sunny. The Sunny, have given the Mad One project, have you completed? You have built some any web application website, and the Viva is also you have given. So in Viva, how what are the question around, and how much you are able to answer? How much answers questions you have answered, and how much you did not answer, and how you prepare for that project? Yeah. First, I didn't prepare for Viva, Okay. and they asked for some changes to in my code. I was presenting my project, and they stopped in between of the presentation, and they told do some changes like change the format of date and change this method. I wrote a method for deleting a product, and they told delete all product. This method should delete all the product. So I changed that product, that 1 method. minute. Application. So we have choices to select which project we want to do, or it's just single e-commerce website only we have to make every time. No. They can. Am I audible now? Last time. Yeah, you are audible. Yes. Last time they given something like social media application. Okay, great. No, not social media application. That was a ticket booking application. What? This time a grocery application. Ticket booking. Okay, ticket booking application. Okay. Train ticket? Not any train, any ticket. Any type of ticket you Train can book ticket, with movie. that app. Okay. So I want to know about the timeline of the project, because I have seen the timeline for the I was seen the January term project. It was the released problem statement released in December, then submitting dates from January to March. So why it is released in December if for January term? 1 month ago, the problem. What is the problem statement? Don't know about December term, but Yeah. in my term, they released after starting the course, Okay. and deadline was they are given 3 slots to submit a project. If you have already completed with Mat 1 theory, then you can submit in slot 1. And if you are doing with Mat 1 theory plus Okay. project, then if you are already know about project, so you can submit in first slot, but they are expecting to submit in slot 2 and slot 3. So the deadline of slot 3 is basically near about end term. Okay. And you can also expect like slot 1 near about quiz 1 and slot 2 near about quiz 2. So if we submitting the near about in term, then what will be the what time will we take the Viva? I submit my project on 21st. Okay. And I gave Viva. First Viva was 5th of September, and level 2 Viva was 7th. Okay. We are given two Viva. And what is the meaning of the problem statement?
Can I answer that? Yeah. So problem statement is just like the task that you have to do. You will be given a certain set of instructions that you need to follow. Not instructions, basically what you are supposed to do in that particular programming assignment or whatever assignment that you have been given. And you will be told that you are free to use or maybe restricted to use these type of technologies. And then you need to create something out of They will not give you like fully free. They will restrict. They will restrict. Okay. So I was expecting that they will restrict. And So Sunny, I have one find- question. For someone who is like me, I don't have a prior experience with web development a lot. I just know a little bit of JavaScript, CSS, and HTML. So will you suggest me to go with that to the MAD project, the theory and practical taking together, or should I do the theory first and then go to the practical, or whatever I have to do? And also, means my mostly interest lies in data science. So I was thinking of pursuing data science first and then programming, but someone suggested me that you should pursue the programming first and then you need to go for the data science. So which one should I pick? Which option should I pick? You are interested about data science. Yeah, I am mostly interested in data science. And you always doing coding about web development. No, not web development. I do a lot of things I do for the blockchain development also. Like I every do the time I coding. saw you yeah, same thing. Every time I saw you are working on JavaScript, React, like this. Yes. But I actually work with Python a lot. That's my core part of the project that I do. Recently, I'm learning web development. That's why I am working with JavaScript. With the programming. Sunny, your If voice you is go actually first breaking. with programming. Okay. Hello? Yes. Is it okay? Go ahead. Yes. Now it's okay. Yeah, if you go with first programming, then you will learn PDSA. Okay. And PDSA will I PDSA think the internet connection is unstable. Okay. Yes, Sunny, your voice has break. Your connection Yeah, was I not can't continue. hear you, Sunny. I can just see you. now it is okay. Yes, now it's okay. So yeah, what you were saying, I should go with the programming first and then. I will suggest you to take PDSA and MAD1 project. Because you know already about. I find the BDM project is also very tough. Business data management. BDM. Why you are saying tough? BDM is totally analysis. You have to do only Excel file, not Excel. Yeah, advanced Excel you have to use. Yeah, we have to go to any company or any business or anywhere, and we have to import some data, and we have to do some filter and visualization and some problem and some solution. It's very easy. You can ask anyone. Very easy. But not everyone will share their internal data, I think. No. Anyone can. If you ask some big like company, like don't ask with some grocery shop. Okay. They don't giving the bill. Don't ask them. Okay. One of my friend who did the BDM project, he took the data from Himalaya. Okay. And you have to took an interview also. And for means we have to take an interview and the data along with it, and then we need to do some analysis and reflect it back, right? Yeah. Some problem. Most of the time we have to do analysis. Some solution of problem. Sorry.
in BDM project, we have to come with a solution of some problem of that company, which you have to study. And if there is You a can consider as a case study. yeah, Case case study, they yeah. will- and there is Yeah, a three type of submission. First, you have to submit initially, then they will accept it. Mhm. Then you have to in the midterm some data, then the acceptance, then you have to finalize the whole Yeah, summary after yeah, that. yeah. Same thing. So I DBMS is the confirm I have to I'm going to take in the this first term, and other subject is not confirmed. Mostly I want to go with only one subject because in this term I want to focus on some other thing also. Okay, so you are taking DBMS. BDM, DBMS. If you are doing DBMS, then database I will management suggest to system, take- like I will suggest take the PDSA along with it. DBMS. अरे यार इतना भारी मत सजेस्ट करो पीडीएफ. This is not too It's too heavy. दोनों अलग अलग चीजें हैं नहीं, ना. एक मिनट, मैंने वीडियो देखा है अपनी, उसमें तुमने बोला है कि पीडीएस से आप ले सकते हैं पहले, उस पे मैं भी शॉक हो गया कि ये क्या बोल रहा है आप तो। नहीं नहीं ले सकते हैं, नहीं बोला. मैंने बोला कि वो बहुत ही सीनियर ने सुझाया है कि बहुत ही टफ सब्जेक्ट. मैंने ऐसा टफ सब्जेक्ट नहीं है. अगर आपके पास इतना एबिलिटी है सोचने समझने की तो हाँ भाई मनीष बोलो. भाई मनीष हैंड रेज मत करो, बोलो Yes, सीधे. I want to know that which type of data we need to take for analysis. It's something like if I take example to some process. Actually, I want to take a P&L sheet of any large cap companies or growth report. जैसे मैंने जो हाँ, देखा है वहां पे जो है कुछ No. फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकिंग होता है, प्राइज मिलता है. तो मैंने जो देखा था एक एग्जांपल, उसमें एक बंदा ने जो है एक्सप्लेन कर रहा था कि उसने कोई हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को एनालाइज किया, फिर वहां देखा कि वहां से कुछ प्रोडक्ट जो पार्ट्स हैं जो वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो पार्ट्स की डिमांड कम हो रही है, मार्केट में सप्लाई कम हो रही है. तो क्यों कम हो रही है, तो उसके डेप्थ में गया तो देखा कि जो पार्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है उसका जो वो है डाया है सम स्मॉल पार्ट दैट इज लेस है, उसको इंक्रीज किया जाए. तो इस तरह से बहुत ही डीप एनालिसिस किया था उस बंदे ने. उसका मैंने प्रोजेक्ट देखा. तो ऑब्वियसली तुमको वही एनालिसिस करना है एक्चुअली में, और इसमें सबसे अच्छा रहेगा, मैं अगर पर्सनली लूंगा तो मैं तो कस्टमर सेगमेंटेशन लूंगा. देखो भाई, कोई सा भी बिजनेस कर लो, उसको अच्छे से जब एनालिसिस करोगे तो पता चलेगा कहाँ पे उनकी कमी आ रही है. उस कमी के बारे में अच्छे से क्वेश्चन पूछो उनसे, उसका एक वीडियो बनाओ, सबमिट करो बस. वो अच्छा, तो बस है इतना ही लेकिन करना है. नहीं इतना ही नहीं, उसके पहले और कुछ लिखना भी है. उसको पहले 1-2 पेज का अरे, कुछ लिख के सबमिट करना है. क्या कर रहे भाई आर्टिकल लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं जो हो मेन तो. काम है वो क्या? तो बताइए. हाँ मेन काम तो यह है, बट वो जो चीज जो लिखना है उसको प्रोफेशनल ढंग से प्रेजेंट करना ना, वही बड़ा कठिन काम है आपका. जो क्या मतलब कठिन काम है. इस टाइम बहुत जगह आपको मिल जाएगा प्रोफेशनल कैसे लिखना है, क्या लिखना है. इस टाइम सब आइडिया मिल जाएगा, कोई दिक्कत ये नहीं. सब कर चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी. सनी भैया, मेरा एक सवाल बिल्कुल है. भी रिलाय नहीं, ChatGPT पे बिल्कुल रिलाय मैं- मत कीजिए. मैं अभी एक एक मिनट, आर्टिकल लिख रहा हूँ, उसमें साफ लिखा हूँ कि ChatGPT को डायरेक्टली यूज नहीं करना है. मैं बहुत सारे प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स बता रहा हूँ उसमें, उसको फॉलो करिएगा तो सही रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो गलत रिजल्ट मिलेगा. ChatGPT रिलायबल नहीं है. हाँ, मतलब डेटा तो गूगल का ही यूज कर रहा है ना. उसके लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करो, चैट जीपीटी बहुत अच्छा है. हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, मैं उसके लिए आर्टिकल लिख रहा हूँ ना कि किस तरीके से मॉडल को चेंज कर सकते हैं. मतलब मॉडल तुम प्रोग्राम कर सकते हो यूजिंग जस्ट राइटिंग इंग्लिश लैंग्वेज. ओके, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा. हाँ मनीष बताइए. हाँ, ये कह रहा हूँ कि जैसे कि मतलब मेरा जो थोड़ा सा लगाव है बिजनेस सेगमेंटेशन से ज्यादा है, तो क्या मैं उसका एक्स्ट्रा एज ले सकता हूँ बिजनेस एनालिसिस में जो भी है? Extract मतलब Data- क्या प्रोजेक्ट के लिए? जैसे कि आपके पास प्रोग्रामिंग का एज था पहले से, प्रोग्रामिंग में आप बेहतर थे, तो आपके लिए प्रोग्रामिंग वाले जो मतलब डिप्लोमा है इन प्रोग्रामिंग वो बेहतर हो जाएगा. उसके लिए आपको पहले से कुछ स्किल्स हैं जो कि एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा आपको. मेरे कहने का मतलब ये है. तो अगर हाँ, तो मैं अगर आपके पास पहले से स्किल है तो डेफिनेटली आप यूज ना. नहीं, मैं वो आपके लिए एक एग्जांपल बता रहा हूँ. अगर मैं ये जो बिजनेस एनालिसिस वाला जो सेट है या फिर जो डाटा उठाना है वो मैं अपनी कंपनीज का उठाऊं या फिर पीएनएल रिपोर्ट उठाऊं या फिर एनालिसिस जो मेरे को आता है उससे कुछ एज मिलेगा मेरे को, ये जानना चाहता नहीं, अगर आप अपनी कंपनी से दे रहे हैं तो हाँ। मतलब मान लीजिए आप अपना कंपनी डेटा उठा रहे हैं,
हाँ वो क्या चाहते हैं कि आप उस कंपनी का डीप एनालिसिस करिए और नहीं उस नहीं एनालिसिस डीप करने डीप एनालिसिस ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मैं ये कहना चाहता हूँ। ये कोई जरूरी थोड़ी है कि मैं हिमालय में इसका ही डाटा उठाऊं, उसका डीप एनालिसिस नहीं करूं। नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा। आपके पास अगर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उसका एनालिसिस किया हुआ, आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं उनको क्या दिक्कत है, मतलब क्या मेरे में एनालिसिस में करने के बाद मेरे कंपनी में क्या कमी आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप जरूर उसको यूज करिए। मतलब लेकिन ये हाँ, एक लेबल बात उनको, लेबल क्या होता है, एनालिसिस का लेबल क्या होता है? ये मतलब लो लेवल पे ये होता कोई है या मैटर नहीं करता, ये कुछ मैटर नहीं करता, ये आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कितना अच्छे जितना से करते बेहतर कर पाए उसके लिए हैं। हाँ, बेहतर। और इसमें एक चीज और, ये उन लोग का जैसे ये प्रॉब्लम होता है, मतलब वो खुद बोलते हैं ये करना रिक्वायर्ड है कि आपको उस कंपनी का एक पर्सन लेना है, उससे इंटरव्यू लेना है और उससे पूछना है कि अपने सारे जो अपने कमियां ढूंढी है एनालिसिस करने के बाद, ओके। तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा। मतलब वो वेरीफाई करना है उस पर्सन के थ्रू कि ये सारी चीजें हो रही हैं या नहीं। हाँ, और मतलब ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आप एक्चुअल में डेटा उठा रहे हो किसी कंपनी का, नहीं ये सिर्फ देखने के लिए। तो वो जो बंदा है वो कंपनी का कोई मतलब कुछ प्रोफाइल ऐसा तो उसकी नहीं कर अच्छी रहा है कि इंटरनेट, प्रोफाइल, एक अच्छा जैसे अगर प्रोफाइल होना चाहिए कैगल पे आप जाओगे तो कैगल में बहुत सारा डेटा मिल जाएगा, तो वही वो चाहते हैं कि कहीं आप इंटरनेट से डेटा ना उठा लो। और मेरा ओके, एक ये वेरिफिकेशन के लिए है कि हम लोग कोई डेटा सेट नहीं यूज करके रियल लाइफ एक्सपीरियंस करें कि कैसे डेटा को लिया जाता है। और अगर आप ओके। बिजनेस के बारे में देखेंगे तो बिजनेस में आपको हमेशा किसी न किसी से बात करना पड़ता है, किसी न किसी से डीलिंग करना होता है, तो वो लोग ये भी चाहते हैं कि आप जाके उनसे बात करें, कैसे बात करना है, सारा प्रोसेस हाँ तो वो लोग हम अभी लोगों को खुद ढूंढना है या वो बताएंगे? खुद ढूंढना है, खुद ढूंढना है, खुद वो आप खुद जिस चलो कंपनी ठीक है, अब में सही जिस है मेरे कंपनी का लिए। एनालिसिस करोगे उस कंपनी का, हालांकि उसमें मेंशन है शायद मैनेजर या कोई अच्छे पोस्ट का आदमी हो, उससे आपको ये बात नहीं करनी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है मैं खुद हिमालय का एम्प्लॉय बन गया था उसके लिए, मैं खुद उसका इंटरव्यू दिया। आप महान है सर। है। अच्छा अरे तो भाई मैं नहीं तो ऐसा ये बात नहीं रियल लाइफ में मिलना बहुत इजी है ना, लिंक्डइन पे किसी से भी रैंडम चैट करो, कोल्ड मैसेज या ईमेल करो, हाँ, वो रेडी हो जाते हैं। अच्छा मैं एक चीज या फिर पूछूंगा बहुत कोई ऐसा, ही और ऐसा नहीं है कि कोई आपको डेटा देने से मना करेगा, कोई नहीं मना करेगा। कोई मैं मना नहीं करता यार, ऐसे अवेलेबल भी है। उसके बाद से आप डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में जाकर के अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हो, पीछे। ये पॉइंट मैं था दिल्ली में था, वहाँ पे कंपनीज के सब आए थे, आईटीएम के साथ मीटिंग था। उसमें ये पॉइंट ये खुद सर जो थे आईटीएम तरफ से, कौन था रिप्रेजेंटेटिव मुझे नहीं पता, उन्होंने ही कहा था कि ये दिक्कत है, इस ये प्रोजेक्ट में जो है लोग ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि कोई भी कंपनी अपना डेटा देना नहीं चाहती, तो इस प्रोजेक्ट का उन्होंने जिक्र वहाँ पे किया था, तो ये इसलिए मैं कह रहा डिपेंड था। करता है किस टाइप के डेटा मांग रहे हैं उनसे। अच्छा मैं एक चीज चाहूंगा अभी यहाँ पर, इम्पोर्टेंट चीज है और ये क्लियर हो जाएगा, अगर सनी को तुम्हें पता है तो बता दो कि डिप्लोमा में जो भी 8 सब्जेक्ट हमारे प्रोग्रामिंग में है और डाटा साइंस में 8 सब्जेक्ट, तो उसमें कौन कौन में ये है आपका ओपीपी हैगा, और एक होगा या दो होगा, तो बता दो जरा उसकी टाइम लाइनिंग क्या होगी, थोड़ा सा क्लियर करो। पीडीएस तो से डीबी, देखिए पीडीएस से डीबीएमएस, पीडीएस से ओनली वन, डीबीएमएस हाँ 1 ओपीपी एक है। ओपीपी है, और जिस ओके सब्जेक्ट में एक ओपीपी है वो आपका हाँ क्विज ओपीपी 2 के टाइम होगा। ओपी 2 की टाइम होगा, ओके। और और आई उसके थिंक बाद सिस्टम कमांड भी है ना? हाँ, सिस्टम कमांड में दो ओपीपी है, 2 ओपीपी है, ओके। जावा में भी 2 ओपीपी है, जावा में भी 2 ओपी। किसमें अच्छा एक है? पीडीएस और डीबीएमएस। ऐसे जावा का और जो वो होगा कोर्स है, क्विज 2 का टाइम। कोर्स है पूरा जावा, इसमें कंप्लीट जावा है ना? हाँ, कंप्लीट कोर जावा है। ओके। मैं और ये और तो उसके बाद प्रोग्राम आपका मैड वन का लैब असाइनमेंट है और प्रोजेक्ट है उसका, फिर मैड 2 का भी सेम। लैब लैब असाइनमेंट से असाइनमेंट क्या हुआ? लैब असाइनमेंट लाइक पाइथन में जैसे वो आता था जीआरपीए, हम्म, तो जीआरपीए जैसा समझ सकते हो। ओके। अच्छा मतलब देव जी ऑन यू कंप्यूटर ही टास्क, करना हाँ है, लाइव करना है या होमवर्क टाइप होगा कैसा? होमवर्क होमवर्क, होमवर्क अच्छा होमवर्क। तो अच्छा कुछ कंडीशन देंगे, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको करना होगा। ओके। ओके। और मेरा ये पूछना था कि हाँ एमएलएफ कैसा है? MLF is totally
मैथ depends on maths to and stats. Maths 2 and stats 2 you are repeating actually in MLF. Just see the syllabus. हाँ, अभी एक थ्रेड काफी शेयर हुआ है और आप लोगों ने भी देखा होगा जो प्लेसमेंट वाला, उसमें गो थ्रू हुए हम्म होंगे। हम्म हम्म तो क्या है मतलब काफी लोगों के निगेटिविटी है, काफी डिप्रेस है लोग कि प्लेसमेंट प्लेसमेंट प्लेसमेंट, इसके बारे में कुछ कहना चाहें? बता रहे हैं जो अब ये प्लेसमेंट हुआ है ना, इसमें सिर्फ 3, मतलब जहाँ तक हमको पता है कि 3 लोगों का ही प्लेसमेंट हुआ। एक वहाँ मेरे साथ ही रहता था। नहीं अभी आप ऑथेंटिकेट हुए क्योंकि मैं ये काम आ सकता है दूसरे को, मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो इसलिए जो रिकॉर्ड? अरे भैया आप क्या ये कर हर रहे चीज हैं? रिकॉर्ड करके डालेगा, हम लोग फंसेंगे। क्या कर रहे हैं आप? नहीं कर सकते, अरे मत करो। ऐसा तो क्यों लग उस- रहा है डिप्लोमा में लगने वाले हैं अपने? नहीं नहीं ऐसा नहीं। तो उसमें देखो एक पॉइंट तो ये था कि जो है 2-3 पॉइंट है, मैं पहले पॉइंट ही बता देता हूँ। एक पॉइंट कोई बोल रहा है कि जो है ये आईटीएम की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है, और एक बड़ा ही ऐसा लिखा था कि हम किसी का ये प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के हम पार्ट हैं, मतलब हम खुद मतलब हमें जो है चीट किया गया लाइक इस तरीके से, और प्लेसमेंट वगैरह कुछ नहीं होने का है, और ऑनलाइन डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है, ऑनलाइन डिग्री कहीं कोई रिकॉग्नाइज नहीं है। अभी जो मैंने वीडियो लास्ट वाला एक मतलब वीडियो मैंने बनाया था जो गेट एग्जाम की तरफ से एक हुआ था, सेशन भी हुआ था आईटीएम का, उसमें जो आए थे वरुण सिंगला साहब आए थे, उन्होंने भी काफी पॉजिटिव चीजें बताई। लेकिन अब एक बंदे ने कमेंट किया कि उसने आईआईटी कानपुर को मेल किया था, और आईआईटी कानपुर ने रिप्लाई किया कि आप एमटेक नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन डिग्री का कोई रिकॉग्निशन नहीं है, लाइक दैट, इस तरह की बातें कर क्यों रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, सरफेस पे हुई, जहाँ तक मेरे सरफेस को हुई लगता हैं। है। हम्म, क्योंकि किसी डिग्री पे तो ये तो नहीं लिखा गया है कि आपका ओपन डिग्री है या फिर ऑनलाइन डिग्री। वही डायरेक्ट बात। बोल रहा है, डायरेक्ट बोल रहा बट दूसरी ऐसा बात कि ये है ना, बीएस ऑनलाइन डिग्री मेंशन है ना यहाँ पे? है। हाँ मेंशन, बीएस डिग्री मेंशन है। बीएस बीएस डिग्री डिग्री मेंशन है, मेंशन बीएस है। ऑनलाइन डिग्री मेंशन है। ऑनलाइन डिग्री है लेकिन उसको हटाने वाले थे ना वो लोग। भाई हट गया है, कहाँ तुमको दिख गया ऑनलाइन? हटा तो दिया हमने। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, हटाने वाले थे पिछले टर्म में। हट गया अभी है। भी हट गया। अभी भी सर्च करते तो आईआईटी मद्रास ऑनलाइन डिग्री कर। हाँ वो वो अच्छा है, अच्छा, इसलिए तो वो होता तो है सिस्टम कि है ना, उस पे वो रैंक कर अरे रहा है तो इसलिए उस पे दिखेगा। भाई बात रैंकिंग का नहीं है, अभी तुम डायरेक्ट सर्च करोगे जब तो उसी टाइम तुमको ऑनलाइन डिग्री दिखेगा। वो इसलिए है कि कुछ हो सकता है एपीआई में डेवलपर्स चेंज नहीं किए होंगे। वो पहले के जो वीडियो रिकॉर्ड हो गए हैं उसी नाम से रिकॉर्ड है, बीएससी वाले पर देखोगे बीएससी लिखा है, अभी बीएस हो गया लेकिन बीएससी ही लिखा है। बात वो नहीं है, मतलब ये है कि स्टूडेंट्स का जो भी वहां पर कमेंट था उसका कहना था कि आईटीएम जो है कुछ भी कर नहीं रही प्लेसमेंट के लिए, जो कंपनीज आना चाहिए उस तरह की कंपनी आ नहीं रही है, लोगों को ऑफर मिल नहीं रहा प्लेसमेंट का, और लोग बहुत ही बैरियर लगा रहे थे। जैसे अभी उसने कहा था कि बैरियर ये लगा दिया है कि आपको सर्टेन सर्टिफिकेशन बाहर से भी करना जरूरी है तभी आपको प्लेसमेंट के लिए बैठ पाएंगे। एक मिनट आप थोड़ा रिकॉर्डिंग ऑफ करिए कि इंस्टीट्यूट में जब पढ़ रहा है, जब जब तुम टफ बीटेक नहीं है, कर रहे थिंकिंग हो, प्रोसेस अगर डिफरेंट होता है, हम लोगों को जिस तरीके से हाँ पढ़ाया जाता है उससे काफी डिफरेंट होता है पढ़ाई, और ये मैं पर्सनली एक्सपीरियंस किया हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। तो इस पॉइंट पर ये बोलो को बताओ, कोई कहाँ गया, एक बंदा कोई आ रहा था चला गया। हाँ, तो ये जो लोग सोच रहे हैं कि तो आईआईटीएम कंपनीज को नहीं बुला रहा है या अभी जो प्लेसमेंट के लिए उतनी कंपनीज नहीं आ रही हैं, इस पे आपको क्या राय है? क्योंकि मैं इंडस्ट्री इंटरेक्शन सेल में जो है अ, गया था, आप उसका वीडियो कहीं भी देख सकते हैं। इंडस्ट्री वाले वहां पर जो कंपनी वाले आते हैं, जब उनसे कहा जाता है कि हमारे स्टूडेंट जो होंगे 4th ईयर में जब जाएंगे तो उनको अप्रेंटिसशिप के लिए हम कंपनी के पास भेजेंगे, ये भी है, और इंटर्नशिप के लिए भी ऑफर के लिए। तो क्या है कि कॉलेज अपनी तरफ से, कॉलेज का काम क्या है कि इंडस्ट्री को भी बताए कि हमारे पास किस तरह से स्टूडेंट तैयार हो रहे हैं, और उस तरह से फिर उनको ऑफर दे। लेकिन जो इंडस्ट्री के भी लोग आए थे वहां पर, माइक्रोसॉफ्ट के भी थे और दूसरी कंपनी के थे, तो लोगों के दिमाग में अभी ये क्लियरिटी इस चीज को लेकर डाउट है इंडस्ट्री में भी कि जो ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं कि कितना ये होंगे, फ्रूटफुल होंगे ये स्टूडेंट। तो वहां अभी पर सर देखिए ये जो इस बात का फर्स्ट भी टाइम हुआ था ना, फिर हाँ। अभी जो भी प्लेसमेंट का काम हुआ है फर्स्ट टाइम हुआ है, हम्म, अभी कुछ ना कुछ डाउट्स हैं। हर जगह पे ऑनलाइन नाम सुन के सर कोई थोड़ा सा वो हो जाता है, अभी है। हम्म, और आईआईटी का जो मतलब कुछ टीचर्स हैं वो ये बोल रहे थे कि लड़के अच्छे नहीं मिले प्लेसमेंट में, ये भी दिक्कत है।
तो अभी लड़के ब्लेम करे आईआईटी को, आईआईटी ब्लेम करे लड़के को। वही बात। तो वहां पे सर इस बात को भी एक्सप्लेन कर रहे थे कि हम सिर्फ ऐसा है कि जो है ये ऑनलाइन डिग्री है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ये घर पे पढ़ाई कर रहे हैं लैपटॉप के सामने बैठ के, हम इसमें बहुत सारे की एक्टिविटीज भी कराते हैं। तो पैराडॉक्स के बारे में बताया कि यहाँ पर इनका इंटरेक्शन भी होता है आपस में, बहुत सारे सोसाइटीज हैं, हाउस हैं, बहुत सारे के इवेंट होते हैं। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि हम इसमें क्या इंग्लिश का भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश में जिसमें वो कम्युनिकेशन करना, कैसे बातचीत करना, बिजनेस कम्युनिकेशन, कोई कॉल रिसीव करना, वो जो एग्जाम्पल जो हमारे क्वेश्चन में आते हैं, उस सब की चीजों को उन्होंने देख के बताया कि ऐसा नहीं, इनको पूरा फुल तरीके से तैयार कर रहे हैं ताकि हर जगह अपनी सर्विस कर पाए। ऐसा नहीं है कि ये घर में बैठ के सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं लैपटॉप पे। तो इस तरह की चीजें एक्सप्लेन कर रहे थे, और उनको डाइजेस्ट करने के लिए कंपनीज के मन में अभी भी बहुत डाउट है। वहां पर जो भी कई जगह का जो है दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, बेंगलोर, हर जगह जाके कॉलेज वाले वो इंडस्ट्री से वो कर रहे इंटरेक्शन कर रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट को कैसे वो कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अब जितना रिस्पॉन्स आएगा, जहां से जितना वो इंटरेस्ट दिखाएंगे, उतना ही हो सकता है। भाई पहली वर्ड कंज्यूम मत बोलो, हम लोग खाना नहीं है। अरे यार वहां पर बोल रहे थे ऐसे वर्ड। एक चीज मैं बस जाने से पहले पूछना चाहता हूँ सनी, इम्पोर्टेंट है। मैड वन में जो सॉरी बीडीएम में जैसे हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो मेरे पास एक डेटा पड़ा हुआ है इसका, पुलिस डिपार्टमेंट का, मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट का। मैं उस पर एनालिसिस किया हुआ हूँ ऑलरेडी, तो क्या मैं उसे प्रेजेंट कर सकता हूँ? जिससे डेटा लिया हो उसका इंटरव्यू ले सकते अच्छा, तो मुझे इंटरव्यू लेना पड़ेगा। ओके, मतलब बस इतना ही करना है ना, एनालिसिस। हो। और बेसिकली एक वो बात और ये मुंबई पुलिस का नहीं है, डिफेंस मुंबई भी कर, पुलिस से ज्यादा वो रोड डेटा सेट है, मतलब जो भी ट्रैफिक लाइट्स पे जो हमारा कैमरास है ना, वो जो लिया है उसको। और ये चीज डिपेंड करेगा किस टाइप का प्रॉब्लम, थोड़ा सा ये भी देखना। ठीक है, मैं समझ गया, थैंक यू। अब मैं चलता हूँ। एक मिनट कल मेरा का भी एक डाउट है हाँ, कि ये प्लेसमेंट एक्टिविटी पॉइंट्स का जो हमने डाला है, तो ये पीडीएस एक्टिविटीज और ये जावा एक्टिविटीज के इसमें पॉइंट्स हैं, तो अपने को उसमें आईआईटीएम की आईडी से ही क्वेश्चन सॉल्व करने का, मतलब उसमें लॉगिन जो है इसमें अच्छा हैकर वो रैंक और ये सब में जो भी वहां पे दिया हुआ है ना, हाँ, उसमें लॉगिन अपने आईआईटीएम की आईडी से ही करना है क्या? वो हम लोगों को उसी लिए तो आईडी दिया गया है, ऑब्वियसली। नहीं मतलब पहले से ही हमने कर रखा है, कोई नहीं जितना नहीं, रेटिंग है तो कोई फिर भी वो आईडी रखो, कोई भी आईडी रख सकते हो, कोई अपना है दिक्कत नहीं। करेंगे। नहीं, अच्छा तुमने एक कुछ चीज किया है, मतलब तुम्हारा शायद एक हैकर रैंक का था ना? मेरा हैकर रैंक का 2-2 अकाउंट है। एक से मन नहीं बड़ा। एक डे और पॉइंट डिसाइड कर लो कि कल या परसों कब करना है इंग्लिश वाला प्रैक्टिस। तो कोई टॉपिक डिसाइड कर लो, उस पर हम बात करेंगे। जैसे नेक्स्ट टर्म में एमएलएफ कौन कौन ले रहा है, पहले ये बताओ। क्या मैं ले रहा हूँ। एमएलएस में मैं भी लूंगा। और यार मैट टू, डर ही लग रहा है मेरे को तो। मैट 2 तो कोई नहीं लेगा, मैट 1 ही नहीं मैं हुआ टू तो नहीं ले रहा, मैं मैट टू ले रहा है। हम नहीं मैं नहीं ले रहा हूँ मैं टू। एमएलएफ जावा, क्यों पूछे? मैं एमएलएफ ले रहा हूँ ना। अच्छा, तुम एमएलएफ ले रहे हो? जावा और एससी के पास कोई जावा तो मैं नहीं ले कभी रहा। पढ़ा ही नहीं, जावा स्क्रिप्ट पढ़ा है, जावा नहीं पढ़ा है। वाला पार्ट उतना सही है नहीं, तो इसलिए मतलब मैं जावा का से ज्यादा कॉटलिन यूज किया हूँ एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट में। वो ये जावा पढ़ा रहे हैं कंसेप्ट के लिए, बाकी प्रोग्रामिंग मैं समझ गया। हमारा कोटलिन का कंसेप्ट। अच्छा मतलब जावा सिर्फ कंसेप्ट के लिए ही पढ़ा रहा है ना, बाकी ऐसा कहीं मेजरली यूज नहीं होगा ना उसका। तो जावा का मेजरली यूज नहीं, जावा सिर्फ ये इसलिए पढ़ाना चाहता है कि लोगों को अच्छे से उसका कंसेप्ट समझ आए। तो एक बात ठीक है। बताइए, आप कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हैं? डिवाइस एंड्रॉइड होगा ऑब्वियसली, राइट? या फिर आईफोन होगा? आईफोन का बात नहीं करते, एंड्रॉइड का करते हैं। उसका जो कर्नल है वो किसमें रिटर्न है? ये कंपनीज पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली मत बोलो जनरलाइज सबके लिए। कैसे बोल सकते, मतलब क्या किस पे रिटर्न होता है? जनरली जावा पे हम लोग जावा रन ज्यादा टाइम लोग जावा प्रेफर कर रहे हैं, अभी के लिए कर रहे हैं प्रेफर जावा। वही है। बट हाँ, शिफ्ट होते रहता है, ये तो टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में चेंजेस होते ही रहते हैं हमेशा। नहीं है
बट जो भी है इंडस्ट्रीज में यूज होता है, सब में सिर्फ UPS का ही यूज किया जाता है। अगर तुम AI भी पढ़ने जा रहे हो, उसमें भी UPS का ही यूज होता है। पूरा पाइथन जो लिखा गया है कोड, वो भी UPS का यूज करके ही लिखा गया है, जितनी भी लाइब्रेरी यूज कर बनाएंगे। फिर तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी है। तो वही कंसेप्ट सिखाने के लिए वो लोग जावा पढ़ा रहे हैं। ओके, मतलब थोड़ा टाइम दूंगा तो जावा समझ सकता हूँ। भाई तू मत समझ जावा, UPS का कंसेप्ट समझ। ठीक है। ठीक है, चलो टॉपिक डिसाइड करते हैं पहले। हाँ, तो नेहा को पसंद है मर्डर मिस्ट्री, तो मैं चाहता हूँ मर्डर मिस्ट्री रखा तो सही है। चलो नहीं चलेगा कोई भी, मतलब जो साइकोलॉजी भी है ना, वेट हाँ ज्यादा होगा। साइकोलॉजी अगर करना है और मर्डर मिस्ट्री दोनों, तो जो ये था दिल्ली वाला केस था, ये बुराड़ी वाला। चली वाला, हाँ वो कर सकते हैं, वो तो भयंकर ही है। बुराड़ी देखा केस नेटफ्लिक्स का देखा सीरीज हाउस ऑफ सीक्रेट्स? हाउस ऑफ सीक्रेट्स, हाँ। यार बहुत ही भयानक था, मैं उसको जब फॉलो किया न्यूज को तो मनीष डर आप लगता कौन है। सब्जेक्ट ले रहे हैं बताया नहीं? मेरा DBMS है कंफर्म, एक ही होगा या 2 होगा, नेक्स्ट नहीं कंफर्म। कौन DBMS क्या है? लेवल क्या है DBMS का? अच्छा एक मिनट मनीष भैया, एक मिनट रुक जाओ हर्ष थोड़ा। अब मनीष भैया पहले पूछिए। मनीष अरे बोला बा। हाँ सुन रहा हूँ। हाँ बताइए। मेरे को थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए अवनीश भैया और आपको लेकर के, थोड़ा सा मैं अकेले में बात करूँ, डिस्कस करूंगा अपनी कमजोरी। एक्चुअली थोड़ा सा मेरा प्रोग्रामिंग जो है ना, थोड़ा सा पता है, एक बार मेरे को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग मैं चाहता हूँ कि कम से कम टाइम में खत्म भी हो। थोड़ा सा जैसे अवनीश भैया का है, मेरा भी थोड़ा सा अलग ही चल रहा है कुछ, तो इसको कम से कम टाइम में खत्म भी करना है, क्योंकि और बहुत सारे काम है। और थोड़ा से इनसे टाइम मैनेजमेंट के टिप्स भी लेने हैं कि कैसे सारी चीजें मैनेज हो। मैं तो लटक जाता हूँ बीच में, मैनेज ही नहीं हो पाता। ये बताओ ये मनीष, चीज मेरे साथ भी होता है, मुझे भी थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का वो कोई तो बता दो। कॉलेज भी कर रही हूँ, शेड्यूल कर प्लेसमेंट में लीजिए। भी हूँ